انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنی کنیز ہاجر سے شادی کی بات کہی۔ پیغمبر نے پہلے پہل تو انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیگم کو بہت چاہتے تھے، لیکن بیگم کے زور دینے پر وہ راضی ہو گئے۔ سارا نے اللہ سے ان دونوں کو ایک اولاد سے نوازنے کی دعا مانگی۔ جلدی ہی ہاجر ایک بیٹے کی ماں بنی۔ پیغمبر نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ پیغمبر آخرکار بہت خوش تھے، اب وہ باپ بن گئے تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دن نہیں ٹکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا، لہذا وہ ہاجر کے پاس گئے اور تیار ہونے کو کہا۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ ہاجر کو اپنے شوہر پر پورا یقین تھا، لہذا وہ بنا کوئی لفظ بولے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئیں۔ وہ ایک بہت گرم دن تھا۔ پیغمبر اور ان کی بیگم تپتے سورج کے نیچے چلے جا رہے تھے۔ ہاجر اپنے کندھے پر اسماعیل کو لیے چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ صحرا میں ایک لمبے وقت تک سفر کرتے رہے۔ ان کا زیادہ تر رسد پانی ختم ہو چلا تھا۔ آخرکار وہ المروا پہاڑی کے پاس ایک وادی میں پہنچے۔ وہ ایک بیاباں جگہ تھی جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور بنا کوئی لفظ کہے پیغمبر الٹے قدم لوٹنے لگے۔ انہوں نے اس بیاباں ریگستان میں ماں اور بیٹے دونوں کو چھوڑ دیا۔ اب ان کے پاس بہت تھوڑا سا کھانا اور پانی بچا تھا، جو زیادہ سے زیادہ 2 دن ہی چل سکتا تھا۔ ہاجر نے انہیں پیچھے سے آواز لگائی، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے انہیں پھر آواز لگائی اور واپس لوٹنے کے لیے گڑگڑائیں، لیکن پیغمبر نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا اور چلتے رہے۔ مدد کرنے کے بجائے جب انہوں نے پیغمبر کو خاموش دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ پیغمبر یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ پیغمبر کو ایسا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ پیغمبر نے ہاں میں سر ہلایا، اور تب ان کی نیک بیگم بولی، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بنا پیچھے مڑے پیغمبر مسلسل چلتے رہے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی ہاجر کے پاس جو بھی کھانا اور پانی جمع تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بچے کو جلدی ہی پیاس لگائی اور وہ رونے لگا۔ وہ المروا کے نزدیک ہی ایک پہاڑی کی جانب دوڑی، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید کوئی وہاں ہو۔ وہ وہاں کھڑی رہی اور اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر نزدیک کی ایک پہاڑی الصفا کی جانب دوڑی، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی وہاں ہو، لیکن وہ وہاں بھی کسی کو نہیں ڈھونڈ سکیں۔ اس کے بعد وہ پھر المروا کے اوپر گئیں اور پھر ایک بار الصفا کے اوپر۔ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ وہ 7 بار دوڑیں۔ آخری بار جب وہ المروا کے اوپر جا رہی تھی تب وہ بہت تھک چکی تھیں، اور تبھی انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ خاموش ہو گئیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگیں۔ جب انہوں نے دوسری بار وہ آواز سنی تو بولی، آپ جو بھی ہیں، مجھے آپ کی آواز سنائی دی ہے، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اور تب انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ وہ فرشتہ زمین کھود رہا تھا۔ فرشتے نے تب تک زمین کھودی جب تک کہ اس میں سے پانی نہیں نکل آیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو وہ اس کی طرف دوڑی اور انہوں نے اس کے ارد گرد پتھر جمع کر دیے تاکہ پانی اکٹھا ہو سکے۔ یہ جگہ جہاں پانی کا چشمہ پھوٹا اسے زمزم کہتے ہیں۔ ہاجر پھر کہیں اور نہیں گئی اور
जमजम पर ही रुक गई। कई दिन गुजर गए थे। अलमरवाह 2 शहरों के कारोबारों को जोड़ने वाला एक रास्ता था। एक दिन कुछ कारोबारी उस रेगिस्तान से होकर सफर कर रहे थे। जब उन्होंने अलमरवाह के ऊपर पंछियों को उड़ते देखा, वो जानते थे कि अगर पंछी वहां हैं तो पानी वहां जरूर होगा। वो देखो, उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है वहां जरूर पानी होगा। बाकी लोग भी राजी हो गए और अलमरवाह की जानिब गए। वो लोग वहां एक औरत को देखकर हैरान रह गए जो अपने बच्चे को थामे हुए थी। क्या हम लोग यहां रुक सकते हैं और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। हाजर राजी हो गई और उन्होंने आबे जमजम इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोग अलमरवाह की जानिब आए और उनमें से कई वहीं बस गए। कुछ बरसों बाद अलग अलग शहरों से आए लोगों से वो वादी आबाद हो गई। अब हाजर और उनका बेटा अकेले नहीं थे। इसी बीच इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। उन्होंने मुसाफिरों से अरबी सीख ली। लोग उनकी खासियतों के चलते उनको इज्जत बख्शते। वो अपने वालिद के बारे में सोचते रहते। वो जानते थे वो वापस जरूर आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह कर लिया और सुकून से बसर करने लगे। उधर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी। उन्होंने बरसों से इस्माइल को नहीं देखा था, लिहाजा एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाना तय किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अलमरवाह पहुंच गए। पैगंबर अलमरवाह की हलचल देखकर हैरान रह गए। आखिरी बार जब वो यहां आए थे तब एक रूह भी वहां पर नहीं थी। वो जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह की रजा है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने लोगों से अपनी बेगम हाजर के बारे में पूछा। लोगों ने उन्हें बताया कि कुछ वक्त पहले ही हाजर का इंतकाल हो गया। पैगंबर ये सुनकर बहुत गमगीन हो गए और फिर लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है। पैगंबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। जब इस्माइल ने यह खबर सुनी कि उनके वालिद आए हैं तो वो उनकी जानिब दौड़े। वो एक तवील अरसे से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वालिद को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोने लगे। बाप बेटे दोनों के लिए ये खुशी का वक्त था, लेकिन यह खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी। एक दिन अल्लाह ने पैगंबर का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को बतौर कुर्बानी कत्ल कर रहे हैं। जब पैगंबर सुबह नींद से जागे तो उन्होंने ख्वाब जानकर उस वाक़ये को कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। उन्हें अब एहसास हुआ कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह ही है जो उनके बेटे की कुर्बानी मांग रही हैं। पैगंबर अपने बेटे के पास गए और उन्होंने ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। वो एक फर्मा बरदार इंसान थे और उन्हें एहसास था कि उन्हें हुक्म की तामील करनी होगी। जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा कीजिए, उन्होंने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और चाकू लिया और अपने बेटे को अराफात पहाड़ी की जानिब ले गए। पहाड़ के ऊपर पहुंचने पर इस्माइल ने अपने वालिद से कहा कि वो उनके हाथ और पैर बांध दें ताकि कुर्बानी के वक्त कोई जद्दोजहद ना हो पाए। पैगंबर ने एहसान जताया और उनके हाथ बांध दिए और फिर खुद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। और फिर उन्होंने कुर्बानी के लिए अपना खंजर ऊपर उठाया। तभी अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज आई कि वो कुर्बानी न दें, ये महज एक इम्तिहान था। पैगंबर को बहुत तसल्ली हुई कि उनका बेटा अब जिंदा रहेगा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और खुशी से रोने लगे।
उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला के दिए कड़े इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब अपने वालिद के साथ लोगों की रहनुमाई करने लगे। उन्होंने लोगों को अल्लाह के बारे में बताया और इस्लाम की जानिब बुलाया। एक दिन अल्लाह ने पैगंबर को इबादत गाह बनाने का हुक्म दिया। पैगंबर ने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह उनसे काबा बनवाना चाहते हैं, और इस्माइल ने जवाब दिया, आप वैसा ही कीजिए जैसा अल्लाह चाहते हैं। जल्दी ही उन्होंने काबा की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे, जबकि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमारत बना रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गईं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लिहाजा इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ऊंचा पत्थर लेकर आए, जिस पर खड़े होकर उनके वालिद इमारत की तामीर कर सकें। यही पत्थर मकामे इब्राहिम कहलाया, जो अब भी वहां मौजूद है। जल्दी ही बुनियाद कायम हो गई, लेकिन वहां कोने में एक जगह खाली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से उस जगह को भरने के लिए एक मुफीद पत्थर लाने को कहा। मैं बहुत थक गया हूं, उन्होंने अपने वालिद से कहा। लेकिन जब बुजुर्ग पैगंबर ने जोर देकर कहा, तो वो पत्थर ढूंढने के लिए निकल गए। इस बीच पैगंबर बैठकर उनका इंतजार करते रहे, और तभी एक मोजजा हुआ। उनके सामने एक फरिश्ता जन्नत से एक पत्थर लेकर हाजिर हुआ। फरिश्ते ने उन्हें बताया कि यह पत्थर आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से जमीन पर लाए थे। पहले पहल वो पत्थर सफेद था, लेकिन जमीन पर लोगों के गुनाहों के चलते वो काला पड़ गया था। कुछ देर बाद इस्माइल वहां लौट कर आए। उन्होंने जब वो पत्थर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने वालिद से पूछा कि आखिर ये कहां से आया? इसे वो लेकर आया है जो कभी नहीं थकता, पैगंबर ने जवाब दिया। आखिरकार उन्होंने काबा की तामीर को अंजाम दिया। उन्होंने अल्लाह से उनके काम को कबूल करने की इल्तिजा की। अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह पैगंबर और उनके बेटे से बहुत खुश थे। काबा को आवाम के लिए एक दीनी मकाम करार दिया गया, जहां लोग ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों से होते हुए पैदल और ऊंटों से आते। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम लंबे वक्त तक इस दुनिया में रहे। वो कुल 137 बरस जिए।